Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. 100 years ago, the literary world lost a giant. Yeah, the same Heart of Darkness famed Joseph Conrad, the one from whose themes and styles writers like T.S. Eliot, Ernest Hemingway, and Chinua Achebe drew inspiration from. As the truth is not in the facts but in the impression, as once said by Conrad, today we seek to understand the impressions he left on literature, and hence we gather here to explore his life, his works and impact on लिटरेरी लैंडस्केप. और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ करवाता जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाए. अहमद नवाज़ खान, ही इज़ एन एविड रीडर, फिक्शन एंड पोएट्री इंथुजियास्ट. उनके साथ ही हैं ज़फ़र सैयद साहब, ही इज़ अ नॉवलिस्ट, ट्रांसलेटर. कुछ ही दिनों पहले इनके काम के ऊपर भी यहाँ पर बड़ा अच्छा सेशन हुआ था जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर तारिक बिनोरी. आप उन्हें जानते हैं एज अ फॉर्मर चेयरपर्सन HEC, बट ही हैज़ अ वेरी गुड आई ऑन लिटरेचर एज वेल. आज के सेशन की मॉडरेशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ज़ाहिर है कि अपने इंसाइट्स भी ऐड करेंगे डॉक्टर नाज़िर महमूद. ऑथर हैं, एजुकेटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. हमेशा की तरह बस एक ही रिमाइंडर होता है कि अपने सेल फोन्स जो है काइंडली साइलेंट मोड में कर लें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. व्हेन द हाउस इज़ ओपन फॉर Q&A आफ्टर द डिस्कशन, आप लोग उसमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा. बस अपना हाथ पहले बुलंद कीजिएगा ताकि माइक्रोफोन आपको दे दिया जाए. इसके बिना आपकी आवाज़ ऑनलाइन ऑडियंस तक नहीं जाएगी और रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, लिहाजा प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम आवर ऑनरेबल पैनलिस्ट्स टू डिस्कस जोसेफ कॉनरेड. थैंक यू. Thank you very much, Nayyar, and for a brief introduction of the panel. Interestingly, when we decided to talk about Joseph Conrad, the initial invitation was sent with, rather than discussing, it said celebrating Joseph Conrad. And some of my friends called me and said, is Joseph Conrad celebratable? Yes, and then it struck me that yes, it's a valid point because Joseph Conrad is a controversial writer, unlike some of the other writers of that time in the late 19th century we are talking about. And he was in the same league. If you look at the English literature of the 19th century, we have writers like Jane Austen and Bronte sisters, and then of course Charles Dickens. And where Charles Dickens ends his writing career in 1870, two writers take over the torch. One of them was Joseph Conrad, and the other, of course, was Thomas Hardy. Thomas Hardy mostly, as we know, wrote about English society, mostly discussing social injustices. Joseph Conrad was a much more interesting character in the sense that he was Polish. By the age of 20, he did not know English. He was proficient in Polish, his own language, and he was proficient in French. But then he became a sailor. And when he became a sailor, he worked with the Englishmen. And that's where he picked up English language, and the mastery of English language he acquired so quickly. Within a few years, he could start his writing career. And we know that the next, from around 1890 till his death in 1924, that comes to around 35 years that he wrote, and he wrote brilliantly. His prose, his style, we will talk about that. Before coming to the speakers, I would like to just show, इसको जरा focus कीजिएगा. कुछ किताबें मैं दिखाना चाह रहा हूँ because so that जो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरा देख लें. This is one of his first novellas. It's The Nigger of the Narcissus, Joseph Conrad. It's not a thick tome, but it's very interesting, and this is considered to be his first major work. And not only that, especially if you read his first 2-3 pages, he gives his ideas about literature, because that was the time when a kind of transition was taking place in terms of his style from realism to impressionistic writing of literature. So in the first three or four pages, Conrad's preface is worth reading. So I'm just showing it to you, students of literature. In some books, they
may exclude the preface, but this book contains that preface. The Nigger of Narcissus, and as you can see, the use of word nigger in the first edition that was there, but when this book was published in America, they omitted this and they changed the name. So, but because this story is about, we will talk about this also. This story is about a black Caribbean person, sailor, who is sick and who's dying, and how other people relate to him, and how sailors indulged in superstition at that time. A brilliant work of art. Then Heart of Darkness and Typhoon, both of them worth reading, both novellas, not thick tomes. Lord Jim is, I think, one of the best. Some consider, there is a controversy. Some say that Nostromo was his best novel. Some say Lord Jim. Some say Heart of Darkness. But that we will discuss, and we will try to see which novel deserves the title to be his best work. And then towards later here, the Secret Agent. He also wrote political literature. This is also a good one. And then we have An Outcast of the Islands. And there are some very good movies also, especially about An Outcast of the Island. There is 1951 movie by Trevor Howard, because I am a fan of Trevor Howard. So those who are interested in movies, they can watch that movie also. And Lord Jim, there is a movie based on adaptation on Lord Jim also, with Peter O'Toole and all. So anyway, with this brief introduction, we will start the discussion, and we will start with Mr. Ahmed Nawaz Khan Saab. And I would appreciate if you begin with giving us your overall, before we go into the details of each novel, if we have time. So let's first have from you a brief overview of Joseph Conrad, why you think he is a great writer, or some of the features of his writing. Will you please enlighten us? Thank you very much for giving me the opportunity to open. You were showing all the books, and it is only yesterday I went to one of the libraries because I had read all these books many decades ago, and I have reread some of these. And only yesterday I went to one of the libraries just to see which books are available. All I got was this Lord Jim. And of course, yesterday night I was not going to read it, but I just wanted to get a feel back of this book and read at least the introduction and few other things. I came across very interesting statistics. This book was printed in 82, in the library 89, from 1989 to 2003. For those 14 years, 7 people borrowed it. So 1 person every 2 years. Then from 2003 to 2015, 12 years, a big gap. Nobody borrowed it. And then after 2015 to present day, it's 9 years. I'm the 5th one borrowing it. So we come back to the average of 1 person borrowing it every 2 years. Very interesting fact. So we are back on track. Why is such a big gap of 12 years? That is very interesting. Club Library. Yeah, Islamabad Club Library. Yeah, so the gap is of 12 years. So I was wondering about it. I do not have the data that who were the people borrowing it, but I personally feel Joseph Conrad would be borrowed by a person in early 20s who is exploring the world, who wants to know new things, who wants to go back to, as we know, 100 years and something like that. So that is a time of exploration. You're finding your way or something. But from 2003 to 15, if nobody borrows it, goes back to the millennials. So early millennials, they failed us. This is my very crisp deduction from the statistics. Well, anyway, coming back to the Joseph Conrad. The best thing about Joseph Conrad is Joseph Conrad himself. If he were to come back today and write about Joseph Conrad,
he would beat all these books. That would be the best book. The most fascinating, the most wonderful, will take you to all the ends of the earth. And so nice. Joseph Conrad, as it was just mentioned, was born in a town which was supposedly a Polish town, but not exactly a Polish town. It was under Russian occupation. And that town is now in Ukraine. And that makes his very start in life very interesting. So we call him Polish. As such, per se, he never lived in Poland as a country at that point in time. He was very young. His parents were activists and they were exiled, and they both died very early. 16 years, his uncle wanted him to be a lawyer. Now, this person does not want to be a lawyer. He wants to be a sailor. And where is he living? Few hundred miles away from the ocean. He does not know the seas. So that was his innate spirit to go explore the corners of the world. Otherwise, a landlocked place, but he never wanted to stay in the landlocked place. He wanted to go. And that is when he ended up in Marseille, and there he initiated his career. And a very interesting thing over there also, when he was pursuing his early career and training and of the being a sailor, he was not good with spending money. So soon he ended up in debts, and then he went to Monte Carlo, borrowed more money, went to Monte Carlo to double his money. That did not happen. He came back and attempted a suicide. But then the events took turn, and then if I want to carry on a bit about his moving over, so it was all circumstantial. Yeah, he was destined to be in UK, and maybe in the next round I continue with few other things. Okay. Thank you very much, Ahmad Nawaz, for giving this brief background of how he started. Zafar Syed Saab, how do you look at him as a great writer? Because there are conflicting opinions about him, especially the critique that was done by Chinua Achebe, by Edward Said, and by many others. But we will come to that later. At this time, I would appreciate if you could enlighten us about which of his works you think deserves to be called his best work and why. Mic de de. Okay. A few words about his English language, because English was supposedly his third language. He actually learned French as well when he was a boy. And he actually wrote in his letters that he started to speak English when he was around 20 years old. But I think there's some exaggeration to this claim, because his father, Apollo Korzeniowski, he was a translator of Shakespeare. So he translated Shakespeare from English to Polish. And Apollo says in a letter that he taught his son everything that he knew. So from this, we can deduce that he must also have taught his young son some English. Because if the father has such a grasp on the English language that he can translate Shakespeare, which is one of the hardest English writers, into Polish, so he must have taught some English to his son. Because when he died, Joseph Conrad was only 11 years old. Both his mother and father actually died when he was a young boy.
So he adopted English. So there's also a lot of debate that why did he choose English as his writing medium? And somebody asked him later in his life, and his answer is very interesting. It reminds me of the same answer that Faiz Ahmad Faiz gave when he was asked that why didn't you choose to write in Punjabi, which is your own native language. And Faiz Ahmad Faiz said that so many great writers like Waris Shah and Bulleh Shah and other writers have gone before me that I couldn't emulate them. That's why I chose not to write in Punjabi. And the same answer was given by Joseph Conrad. He said that there are so many great writers of the Polish language that I don't want to spoil or soil Polish language with my own writings. That's why I chose to write in English. But I think the decision to write in English was more pragmatic than that. He had a greater audience in English. He was extremely popular in America, even though he didn't like America because he thought that America was an imperialist and opportunist country. So he didn't like America, but he was widely read in America. And he was also followed by American writers like Hemingway and Fitzgerald and other writers. So that's why I think he chose to write in English. And his French anyway is not very good. There is some material that he has written, mostly his letters. And I don't know French, but some of his biographers tell us that his French was not good. But his English is extraordinary. And I can think of only one other writer, Nabokov, who can be compared, because Nabokov was a Russian who chose to write in English, and he is one of the masters of the language, one of the greatest stylists of the English language. And so is Joseph Conrad. When he chose to write in English, so he brought a kind of different tone and style into the language. And all of his books are like they are not like you actually mentioned other English novelists like Thomas Hardy and William James and other writers. So he's totally different from he actually brings some kind of alienness to the language. And interestingly, he was not liked by the British. He was very much admired by the Americans, but the British didn't like him. Virginia Woolf wrote that he is our guest, our guest in the country. So like othering him, like he is just a foreigner. And she also wrote that on his obituary that he had a very thick accent when he spoke English. So he kind of disparaged him. But the Americans adopted him wholeheartedly. And I read somewhere Hemingway's quote. And Hemingway writes that some people think that T.S. Eliot is a better writer than Joseph Conrad. And if I could mince T.S. Eliot and sprinkle it on the grave of Joseph Conrad, and if Joseph Conrad could come alive, tomorrow I will leave for London with a mince grinder. So that shows that how much esteem Ernest Hemingway had for Joseph Conrad. So I wanted to situate him as his decision to write in English. So if you want to ask some other question. Okay. Thank you very much. Probably when you said William James, you meant Henry James, because William James was his brother, who was more famous as a psychologist rather than a writer. Yeah. Of course, this disparaging attitude towards foreigners, especially Joseph Conrad, this is evident because now we are talking about Victorian and Edwardian England. So that tendency was, of course, there. My question remains still, and the same question I will present to you, and that is with this background and context that these two speakers have given, I think now we are in a better position to focus on some of his works.
rather than how he developed and how he started writing. So I will repeat my question, and that is, which of his works you think deserves to be called his best work, and why? Nazir Mahmood sahab, is this working? You'll be disappointed. अच्छा, बात हमने अंग्रेजी में करनी है उर्दू में करनी है? अच्छा, देखें, I consider Joseph Conrad to stand at the cusp of I consider Joseph Conrad to stand at the cusp of a very important historical passage. ठीक है, we were going from kind of the classical age towards modernism, और उसके मैं थोड़ी बहुत आपसे वो करता हूँ, वो उसके बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। उसमें उनके जो कई चीज़ें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की, which have now become so common for us that we forget when it was introduced. तो उसको समझने के लिए मुझे आप इजाज़त दें तो मैं एक दो तीन बातें कर। देखिए, 19वीं सदी जो है, it's a massive disruption in human society, right? This is the age when the industrial revolution comes into flower, और वो ऐसा है कि बस एक तूफान आया है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो आप जब 19वीं सदी को देखते हैं तो आप एक पूरा एक नीचे से ऊपर तक हर चीज़ उलट पुलट आपको नजर आती है। There are tremendous social movements। देखें ना, हमारा देवबंद बना 1866 में गालिबन। अहमद रज़ा ख़ान ने बरवेली ट्रैक लिखा लेट 19th सेंचुरी। ये क्रिश्चियन साइंटिस्ट, मॉर्मन्स, शेकर्स, एमिश का एक नया वो हुआ, कई हर किस्म के क्रिश्चियन सेक्शन निकलते आते हैं। आपका ब्राह्मो समाज, आपका आर्य समाज, आपकी सारी हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ज़ायोनिज्म एज ए मूवमेंट emerges in the 19th century. All of this is really human beings feeling completely lost. हम क्या करें? कियरकेगार्ड ने बहुत बेहतर, सोरेन कियरकेगार्ड बहुत मशहूर फिलोसफर थे, डेनिश, अर्ली 19th सेंचुरी में थे, लेकिन उनकी चीज़ें ट्रांसलेट हुई थी तकरीबन लेट 19th सेंचुरी। उसने बहुत सिंपल सवाल किया। उसने कहा, हमारा मकसद, फ़लसफ़े का मकसद, रिलीजन का मकसद ये नहीं है कि हमें क्या आना चाहिए, बट ये है हाउ शुड वी एक्ट। We are lost, and everywhere you see people are talking about we are lost, and in this you actually feel a tremendous flourishing of different type. मैंने religion की आपसे बात की, आप देखें some of the major figures, Karl Marx, उसने social science को तश्कील किया। उसने कहा सोशल साइंस ये नहीं है कि मैं देखूं कि अच्छा भाई ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक फ्रेमवर्क है जिससे हम तमाम सोसाइटी को समझते हैं, राइट? ही गेव अ टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। चार्ल्स डार्विन, उसने कहा आप ये नहीं है कि एक पौधे को देखो दूसरे पौधे को देखो, उसने पूरा आपका सिस्टम ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑल ऑफ नेचर हैज सर्टेन रूल्स ऑफ मोशन जो है। आइंस्टाइन, उसने, और ये सारे देखे ना, मिड 19th सेंचुरी में डार्विन और अपना वो लिख रहे थे। आइंस्टाइन ने आके एंड ऑफ द 20th सेंचुरी पे, अर्ली 20th सेंचुरी, सॉरी एंड ऑफ 19th अर्ली 20th सेंचुरी में आपके सारे साइंस की काया पलट थी। नाउ द थिंग इज पीपल आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, व्हाट आर वी टू डू। सेवरल न्यू डिसिप्लिन्स emerged। साइकोलॉजी पहली दफा होती है, सिगमंड फ्रॉइड 1880s से उसने काम शुरू कर दिया एज डॉक्टर, लेकिन 1890s में आके जो है वो अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और साइको एनालिसिस और ये चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। एक पूरा नया डिसिप्लिन उन्होंने बना दिया। ये एमिल डुर्कहाइम सोशियोलॉजी का पूरा डिसिप्लिन लेट 19th सेंचुरी में वो कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये करूँ कि 19वीं सदी जो है एक बहुत, वो कार्ल जैस्पर्स का एक लफ्ज़ है द एक्सियल एज, कि ये एक एक्सेस है जिसके ऊपर सारी सोसाइटी आपकी टर्न कर रही है। वो ऐसे जा रही थी और ऐसे टर्न करके आ गई, राइट? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ द टोटल डिसरप्शन प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच फोर्स्ड पीपल टू थिंक कि नॉर्मल तरीके से हम नहीं सोच सकते। अब उसमें आर्ट मूवमेंट्स भी आई। मैंने डार्विन और इसका मार्क्स का जिक्र किया सोशल साइंसेस में, लेकिन अगर आप वागनर को देखें तो वागनर जो है
वो आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं वो बना के दूंगा, उसने कहा आर्ट फॉर एवरीथिंग, राइट। उसमें म्यूजिक भी है, ड्रामा भी है, ओपेरा भी है, और हिस्ट्री भी है, फिलॉसफी भी है, एवरीथिंग इज अबाउट आर्ट, राइट। ही एक्चुअली राइट्स अ ट्रैक्ट which says कि art for everything, and in fact ये सारे लोग जो हैं उससे काफ़ी मुतासिर थे। So 19th century में ये सारा आता है। एक बहुत important movement आती है impressionism की, राइट। आपने आर्ट की मूवमेंट का नाम सुना होगा, impressionism का। impressionism में क्या है, वो ये कहते हैं कि हम ऐसे तस्वीर नहीं बनाते, हम अपनी फीलिंग्स को सामने लाते हैं, राइट। वी वॉन्ट टू नो हाउ यू फील। ये नहीं है कि मैंने आपकी शक्ल बना दी, उसने शक्ल नहीं बनाई, उसने शक्ल के थ्रू आपकी फीलिंग्स को उजागर किया, ठीक है। आप पहले जो वो नेचुरल करते थे, फिर ये बाद में वैन गो वगैरह, अब वैन गो की आप देखें वो ह्यूमंस की तस्वीर बनाता है, बट इट्स रियली एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इट्स नो लॉन्गर दिस थिंग, इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो जोसेफ कॉनरैड को लोग कहते हैं कि ही इज अ लिटरेरी इम्प्रेशनिस्ट, इज अ लिटरेरी इम्प्रेशनिस्ट। ये पहली दफा ये है कि कहानी नहीं सुनानी, फीलिंग्स को उजागर करना। वी पुल आउट द फीलिंग्स ऑफ पीपल, राइट। और जब आप उसकी कहानी पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि कैसे वो फीलिंग्स आपके सामने ला रहे हैं। उसमें मैं एक दो चीजें और कहूंगा और फिर, बट ये जो लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म है ना, वो जो एल्फ्रेड हिचकॉक ने एक बात कही थी फिल्म बनाने में, उसने कहा था कि देखो, द पर्पस ऑफ द फिल्म is not to tell a story, it is to manipulate the audience. फिल्म का काम है कि हम ऑडियंस के साथ एक ताल्लुक बनाएं, उनको एंगेज करें, उनको उनके हार्ट में हम जाके करें, ठीक है। सो इट्स रियली द इशू ऑफ द ह्यूमन हार्ट दैट ही इज ब्रिंगिंग आउट। तो इसमें जब जोसेफ कॉनरैड ने लिखना शुरू किया और अपना जो डिस्कशन उन्होंने उसके टेक्निक्स वगैरह पे किया, उस पर ये मुझसे बेहतर जानते हैं, और ये जो किताबें हैं उस पर भी हम तफसील से जा सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस वुड हैव एन ओपिनियन, बट मच मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस इज हाउ ही अप्रोच्ड इट। एक चीज़ तो ये है कि, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू ऑफ नैबोकोव जिनका आपने जिक्र किया, एज वेल एज कॉनरैड, कि वो अल्फाज पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, चूज द राइट वर्ड। एंड आई थिंक वो, जैसे आई एम ऑल्सो नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, हमने भी सीखी है, तो हमें हर वक्त लफ्ज़ की तलाश रहती है। तो एक तो उन्होंने उसकी अंग्रेज़ी बहुत इम्पेकेबल है, लेकिन और ये मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन सी कि बहुत मेहनत से लिखी गई है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली देन दिस इज़ के उसमें दो चीज़ें हैं जो आप समझें। उसमें एक बात तो ये है कि वो कहानी का मकसद ये नहीं है कि वो आपको नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव आपके सामने है, लेकिन असल में वो सर्कल करते 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 आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, राइट। कुछ लोगों ने उसे अनियन से मिसाल दी है कि दे आर एक्चुअली ही सर्कल्स विद ग्रेटर एंड ग्रेटर इंटेंसिटी। तो एक ये मसला है कि वो कहानी की उस तक पहुंच रहे हैं, और जब कहानी शुरू होती है तो बिल्कुल ऐसे जैसे लगता है समुद्र काम खामोश है, और फिर आस्ता आस्ता आप अंदर जाते हैं तो इसमें एक टर्मोइल शुरू हो जाता है, और फिर उसी टर्मोइल में वो आपको छोड़ देते हैं, राइट। बिकॉज द पर्पस इज नॉट रियली टू रीच द एंड ऑफ द स्टोरी, द पर्पस इज टू टॉक टू यू अबाउट द फीलिंग्स, अबाउट द एंगेजमेंट विद दिस थिंग, राइट। तो उसने एक नया टेक्निक जो बाद में जैसे एक रैशोमॉन कहते हैं, जैसे उसकी कहानी है विक्ट्री, जिसमें वो 3-4 पर्सपेक्टिव से वही कहानी सुनाई जाती है। यू नो, वो हाइस्ट है जो मेन कैरेक्टर है, फिर दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उसकी बीवी है, यो गर्लफ्रेंड है, जो भी है, फिर उसके कैरेक्टर से, वो जो बैंडिट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो जो बाद में रैशोमॉन ने किया कि मुख्तलिफ लोग उसको बता रहे हैं, एंड नथिंग इज ट्रू। हमें 19वीं सदी में ये भी समझ आ गई कि देयर इज नो रियल, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑल ऑफ इट इज इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो सो ही एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड अ टेक्निक, और उसमें जैसे हम शॉर्ट स्टोरी, उर्दू शॉर्ट स्टोरी में भी कहते हैं कि उसकी कहानी आप पढ़ें तो एक तशनीगी होती है, क्योंकि उसका मकसद, और फिर उसने एंटी हीरोज इंट्रोड्यूस किए। तमाम पहले कहानियों में हीरो होते थे, इसके सारे एंटी हीरोज हैं, आखिर में मर जाते हैं।
बट मर जाते हैं, वो ट्रेजिडी नहीं होती, बट दैट इज हाउ लाइफ इज. एंड ऑल्सो उसमें ये होता है कि वो कहानी ख़त्म नहीं होती, बिकॉज द पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 19th century वॉज कि नथिंग एवर कम्स टू एन एंड, यू स्टार्ट समथिंग एंड इट जस्ट गोज ऑन. तो उसने एक बहुत नई किस्म की टेक्निक्स की ईजाद की, ये उस बाद में लोगों को समझ आई. और फिर ये जो हेमिंगवे कहते हैं या फॉकनर कहते हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स विच दे इन्फर फ्रॉम इट. तो फॉकनर, जब विलियम फॉकनर अमेरिकन ऑथर से 1950 में गालिबन उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उसने एक स्पीच में, ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ जोसेफ कॉनरेड, तो उसकी जो नोबेल स्पीच थी उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा देयर इज ओनली वन थिंग वर्थ राइटिंग अबाउट, worth the slog and the sweat, worth all the agony that you have to go through. And that is the struggle of the human heart in conflict with itself. The struggle of the human heart in conflict with itself. That's the only thing worth writing about. The only thing worth writing about is the love and the courage and the compassion and the pity and the honor and the pride, which is something which is our true glorious past. तो ये उसने वो किया. लास्ट पॉइंट नाज़िर साहब, मैंने ज़रा थोड़ा टाइम ले लिया, बस मैं आखिरी पॉइंट ही कहना चाहता. लास्ट पॉइंट इज़ कि देखें उसकी कहानियाँ समुंदर की थी, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पहले लोगों ने कहा ये सिर्फ समुंदर की कहानी है, वो समुंदर की कहानी नहीं है. दे वर ऑल द स्टोरीज ऑफ द ह्यूमन हार्ट इन स्ट्रगल विद इटसेल्फ. एंड because we were in the age of globalization, that was the right place. The second thing is that this was all about colonialism. This was all about colonialism. उसमें कुछ में वाजे है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस को तो लोग कहते हैं कि ये वाजे है, लॉर्ड जिम को लोग कहते हैं ये वाजे है, लेकिन कुछ में वाजे नहीं भी है, तो इट इज स्टिल अबाउट colonialism. वो एक जगह कहता है कि it is written that I should be loyal to the nightmare I have chosen. And he chose the nightmare of being British, which was the true colonial and imperial power at that time. And he brought out the heart of colonialism by showing the struggle that it entailed. So I think all of us need to go back to Joseph Conrad. He gives us a lesson which some people today have forgotten. थैंक यू वेरी मच. बहुत आपने, अब उर्दू में आ गए तो मेरे ख्याल उर्दू में जारी रखते हैं इसको. बहुत खूबसूरती से आपने उसकी बैकग्राउंड और 19th सेंचुरी का बताया. अच्छा, मुझे इसमें ज़रा सा थोड़ा सा इशू आ जाता है, मेरी ऑब्जर्वेशन इशू ये आ जाता है कि जब भी कोई ये कहता है कि जी फ़लाँ दौर जो था वो बड़ा फैसला कुन था, तो मैं सोचने लगा हूँ क्या उससे पहला वाला दौर फैसला कुन नहीं था, या उसके बाद आने वाले दौर फैसला कुन नहीं थे. तो ये 19th सेंचुरी के बारे में जो आपने जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है बनूरी साहब, कि वो बड़ा कस्ब था और बड़ा चीज़ था, मैं सोच रहा हूँ कि उससे पहले वाली सेंचुरी में चले जाए तो वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा था, उससे पहले जो अमेरिकन रेवोल्यूशन आ रहा था जहाँ से डेमोक्रेसी का आगाज़ या जो कुछ भी हुआ. तो ये मेरा ख्याल है ये कहना, पता नहीं ये किस सतह का, कभी तारीख पर बात होगी तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि ये अलग से सेशन रखना चाहिए. शुरू तो आपने किया ना, तारीख पे तो आप ले गए. खैर, अच्छा, चूंकि अभी तक उसके किसी उस पर बात नहीं हुई है ना, वर्क पे, जो मैं चाह रहा हूँ शुरू से, तो मेरा ख्याल है मैं ही इस पे शुरू करता हूँ. और मैं थोड़ा सा अपने जो नाजरीन है या सुनने वाले हैं उनको मैं बता दूं, मसलन ये इस पे से बात शुरू करते हैं, द निगर ऑफ द नार्सिसिस्ट, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये शायद उसका पहला सबसे बड़ा वर्क, सबसे बड़ा मतलब मशहूर और अच्छा कमेंडेबल वर्क जो समझा जाता है. इसकी मुख्तसर कहानी ये है कि जैसे कि निगर लिखा हुआ है, तो एक कैरेबियन अफ्रीकन है जो कि सेलर है, वेट नाम है उसका, और वो बीमार है, ही सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़. वो शिप पर है, उसके साथ दूसरे सेलर्स हैं. तो ये जो इम्प्रेशनिज्म की इन्होंने बात की ना, तो इसमें बड़ी खूबसूरती से उन्होंने ये बताया है कि एक कैरेबियन अफ्रीकन सेलर बीमार है, और जो दूसरे उसके साथ आसपास हैं ज़्यादातर वो वाइट हैं, और वो कैसे उसके साथ रिलेट करते हैं और कैसे डाउट्स क्रिएट करते हैं. और अच्छा, फिर उसमें रेसिज्म, जो अच्छा रेसिज्म इसका कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म कॉनरैड का एक बड़ा ख़ास मौजू रहा है, जिस पे इसने बार बार लिखा है, तकरीबन हर उसमें वो वापस आ जाता है उस पर.
तो वो रेसिस्ट एलिमेंट्स जो वहाँ पर हैं शिप में, और जो सुपरस्टिशंस हैं वो कैसे प्ले आउट करते हैं। फिर उन्हीं में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उसकी मदद भी करना चाहते हैं, और फिर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है। नार्सिसस जो है वो ये उस शिप का नाम है, और द निगर ऑफ द नार्सिसस, यानी वो निगर, वो कैरिबियन अफ्रीकन जो कि उस शिप पर है, और उसको किन हालात का सामना करना पड़ा, उसके बारे में ये नॉवेलेट है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका तर्जुमा उर्दू में हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी को करना चाहिए। उनका शायद एक ही ज़फ़र सईद साहब, शायद वो सलीम उर रहमान साहब ने किया था ना, हार्ट ऑफ डार्कनेस का, कल्ब ज़ुल्मात के नाम से। चलें, तो ये इस पे थोड़ी सी बात हो गई। अब मैं वापस आता हूँ अहमद नवाज साहब की तरफ से। मेरा ख्याल है आप, बजाय इसके कि मैं आपसे सवाल करूँ, आप ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, जो आप कहना चाहते हैं प्लीज़। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट जो किताब है लॉर्ड जिम, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पहली बात तो ये थी कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कहा, तो शिपिंग में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिफ्लेक्ट हो रहा था। जोसेफ कॉनराड सेलर था ऑन सेल शिप्स, जिसके ऊपर सेल्स थे, और उस टाइम पे ये स्टीम वाले शिप्स भी जो थे वो इंट्रोड्यूस हो चुके हुए थे एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। ये बिल्कुल उसके टाइम पे ऑलमोस्ट 50% दोनों चीज़ें थी। और ये था कि ऑन द लॉन्ग रेंज क्रूज सेल वाले शिप दे वर मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि उनको वुड तो चाहिए नहीं थी, उनको स्टीम तो चाहिए नहीं थी, वो तो वैसे ही जाते थे। और बिकॉज जोसेफ कॉनराड was always, most of the time he was looking for jobs, तो एंड बिटवीन जॉब्स रहता था ज़्यादातर, तो इसको मिलती थी जॉब्स जो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाते थे शिप्स, लॉन्ग वॉयजेस। So we have books like लॉर्ड जेम एंड एल्मियर्स फॉली, जो शुरू में थी वो बोर्नियो और सारावाक वगैरह का, और ये सारी उस रीजन की। और दूसरी डायरेक्शन में नोस्ट्रोमो और वो कैरिबियन के साथ वो विच एवर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री उसने खुद ही जो की। सो कमिंग बैक टू लॉर्ड जिम में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, पहली बात एंटी हीरो। जो हमारा लॉर्ड जिम है, ही इज़ एन एंटी हीरो, जैसे एन ऑर्डिनरी पर्सन। और बुक की डिटेल, इफ़ यू ऑल नो इट, शुरू में ही है कि there are pilgrims coming from perhaps Singapore or something, or Muslim pilgrims going to Jeddah, or ship hits something invisible and there's a gaping hole and the pilgrims are sleeping. He tells the captain and he's the first mate, लेकिन वो pilgrims को सोता रहने देते हैं and they all jump. When Lord Jim, who was just Jim at that time in the story, when he is about to jump, he is looking at the others and thinking कि ये कितने बुज़दिल और डरपोक लोग हैं छलांग मार रहे हैं। And next he finds इसने भी छलांग मारी हुई, ये भी उनके साथ ही बैठा हुआ है। That was a very interesting part for me. वो वाला जो पॉइंट है ना इसका, कि जब उसमें बैठ के, और उसके बाद फिर ट्रायल होता है और शिप नेवर सिंक्स। जब ट्रायल इसका होता है, ही इज़ द ओनली वन हुज फेसिंग ट्रायल, बाकी जो है वो सब दाएं बाएं हो गए, ही इज़ द वन फेसिंग ट्रायल। वहाँ से फिर दूसरा फेज स्टोरी का शुरू होता है। नाउ ही नोज ही हैज़ डन समथिंग लेस देन ऑनरेबल एंड ही कैन नॉट जस्ट विश इट अवे, ही कैरीज इट इन द bottom of his heart all the time. He's carrying that sort of guilt, whatever. And he ends up doing other small jobs. He's stripped of his license, so he's not in the ship after that. So Lord Jim जब भी फेस करता है mention of the ship Patna, I think there's the name of the ship, SS Patna, जब उसको कोई भी mention करता है, he backs off, he runs away from that place, he just cannot face it. और finally he ends up जहाँ पे भी ये पहुँच गया सारावाक में somewhere, उधर भी जो finally end इसका होता है, उधर he wants to be a hero, anti-hero wants to be a hero. उसने बड़ा struggle करके chivalry दिखा के और बड़ा ethical behavior and does everything and becomes
टुआन जिम विच इज़ लॉर्ड जिम, लॉर्ड बन जाते वहाँ। लेकिन वहाँ पे भी जब there's somebody जिसको अंदाज़ा हो जाता है कि he has done something dishonorable, then that is the time he says that finally I have to face it head on, and he walks into his own death. He is killed by, well, that is a detail in the story. Now, why do I like the style of this book? Very briefly, I'll just go over it. It comes from the way he lived his life. In a ship, it is a small community far away from the land. और वो community आपस में they talk a lot. So there is somebody speaking and there are listeners. Speakers keep on speaking, keep changing their positions, and the listeners are always there. They always talk of what was behind them in their lives and what they look forward to. और दोनों डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इस बुक में जो मार्लो नरेट कर रहा है स्टोरी, दैट इज सो फैसिनेटिंग। ठीक, थैंक यू। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पहले ये एक हजरत सो रहे हैं, इनको ज़रा जगा दें क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है और ये लाइव जा रहा है, तो आप अगर या तो पीछे बैठ के सो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये डजंट लुक नाइस है। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है ना, लाइव भी जा रहा होता है और फ्रंट सीट पे आप बैठे हुए, पीछे जाके सो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपने एक दो बातें इंटरेस्टिंग की, मुझे उस पर एक दो बातें याद आई जो मैं आपसे शेयर कर लूँ। जो स्टोरी उन्होंने बताई लॉर्ड जिम की, कि वो लॉर्ड जिम जो है वो ज़ाहिर शिप से वो उसको कूदना नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑफिसर है और वो शिप से कूद जाता है, शिप बच जाता है। जिन लोगों ने 80s में फिल्में देखी हैं, काला पत्थर एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उस फिल्म में इस लॉर्ड जिम से कुछ चीज़ें बोरो की गई हैं, ली गई हैं। उसमें भी बिल्कुल ये वो फिल्म शुरू होती है, हमें याद इसलिए कि हम कॉलेज के ज़माने में फिल्में देखा करते थे अमिताभ बच्चन की VCR पे ला के, तो उसमें यही था कि अमिताभ बच्चन एक कैप्टन है और वो शुरू में नहीं पता लगता कि क्या कहानी है। शुरू में तो ये कि वो एक कोयले की कान में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि वो एक शिप के कैप्टन थे और वो शिप जब तूफान में आ गया तो ये कूद गए और शिप बच गया, तो जाहिर है ये डिसग्रेस थी उनके लिए। तो वो अपना वो जो बुरा काम उन्होंने किया उसका कफारा अदा करने के लिए अमिताभ बच्चन जो है वो फिर कोयले की कान में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो ये जस्ट एन असाइड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखें जो रेसिज्म होता है कैसे काम करता है। अब जैसे आपने कहा, राइटली पॉइंटेड आउट, कि लॉर्ड जिम में जो असल जो कहानी जो इसने लिखी है उसमें ये दिखाया गया है कि जब वो SS पटना जहाज़ डूब रहा है तो उसमें जो मुस्लिम पिलग्रिम्स हैं जो हज पे जा रहे हैं वो सो रहे हैं। अच्छा, अब ये देखने की बात है कि अब इसमें रेसिज्म आप कैसे देख रहे हैं कि अब जहाज़ जो है वो तूफान में है, पिलग्रिम्स मुसलमान हैं, ये लोग जो अफसर हैं गोरे ये जहाज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। किताब में ये लिखा है कि जो हाजी हैं वो सो रहे हैं। अच्छा, और जो फिल्म बनी है पीटर ओटूल की, उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि जहाज़ तूफान में घिरा हुआ है और वो जो पिलग्रिम्स हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं जहाज़ के अंदर। ये आप वो फिल्म देख लें तो अब देखें ना ये कैसे ये रेसिज्म काम करता है कि अब उनको नेगेटिव उसमें दिखाना है कि मुसलमान या तो सो रहे हैं, हज पे जा रहे हैं वो सो रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न कि जहाज़ डूब जाएगा तो क्या होगा, या तो सो रहे हैं, सो नहीं रहे तो फिल्म में जो दिखाया गया वो नमाज पढ़ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। खैर एनीवे, ये दो असाइड एक दो चीज़ें मेरे जहन में आई तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। ज़ैफ सैयद साहब, अब ये लॉर्ड जिम पे तो बात हो गई, मेरे ख्याल इस चैप्टर को तो क्लोज करते हैं, आगे प्लीज। हाँ, इसकी जो टेक्निक है वो बतौर नॉवलिस्ट मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी कि कैसे भरता है उन्होंने। तो इसके अंदर उन्होंने नेस्टेड स्टोरीज रखी हैं कि जो नरेटर है वो मार्लो है, जो उनके और नावलों में भी है, मतलब हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी है और नोस्ट्रोमा में भी, जी इनमें है, शायद एक आध में भी है। हाँ, तो मार्लो बयान करता है स्टोरी, लेकिन बीच में दूसरे नरेटर भी आते हैं और वो नेस्टेड, यानी स्टोरी के अंदर स्टोरी, यानी एक स्टोरी मार्लो सुना रहा है, फिर मार्लो जिम की स्टोरी सुना रहा है, फिर बीच में दूसरे किरदार आ रहे हैं, वो भी एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से दिखा रहे हैं। जिस तरह वो उन्होंने मतलब रेशोमोन इफेक्ट की बात की, तो वो हमें मिलता है। और ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले मेरे ख्याल से दुनिया के लिटरेचर में अल्फ लैला में ये इस्तेमाल हुई थी
कि एक नरेटर है जो दास्तान बयान कर रहा है, दास्तान के अंदर से दास्तान निकलती है, उसके अंदर एक और दास्तान है। तो यहाँ पे उसी तरह की चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है, और ये बड़ा ही एक पोस्ट मॉडर्न टाइप की इसकी टेक्निक है लॉर्ड जिम की, और बड़ी मतलब सोफिस्टिकेटेड उन्होंने टेक्निक बरती है, जिस पे बाद में फिर पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने बहुत कुछ लिखा कि आप ट्रूथ को कैसे ढूंढ सकते हैं, कि एक ही चीज़ है, वो मुख्तलिफ लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सच्चाई का अंदाज़ा नहीं होता, वो मतलब कैसे उस तक पहुंचा जाए। तो ये इसका बुनियादी मतलब वस्फ़ है। तो इसलिए मुझे ये बाकी नावलों की निस्बत ज़्यादा पसंद है, और फिर स्टोरी भी ज़ाहिर है कि एक एडवेंचर, और फिर जो गिल्ट है, गिल्ट को लेके वो अपने साथ चलता है। आपने काला पत्थर की बड़ी अच्छी मिसाल दी कि काला पत्थर में भी यही गिल्ट है, और वो ज़ाहिर है कि उससे अडॉप्ट करके उन्होंने लिया है, लेकिन बाद में फिर दूसरी चीज़ें उसके अंदर, वो कोयले की कान और वो चीज़ें आ जाती हैं। आप किसी और पे बात करना चाहेंगे आप, या हम बनोरी साहब की तरफ आ जाएं? अभी अच्छा, तो आप यू वांट टू टॉक और यू वांट हिम टू टॉक? बनोरी साहब आप चले, आप पे आ जाते हैं ना। मैं ये चाह रहा हूं कि अब चूंकि वक्त कम है और ज़ाहिर है हर टॉपिक पे तो बात नहीं की जा सकती, अब हमारे पास 15-20 मिनट हैं और जिस पे हम बात करेंगे। अच्छा, मैं जो उन पे क्रिटिसिज्म है उस पे मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि कोई रोशनी डाले, आप डालें या ये, क्योंकि दो मेजर क्रिटिसिज्म जो उनके बारे में जो लिखा गया है, एक तो एडवर्ड सईद की है। एडवर्ड सईद की तो खैर पीएचडी का थीसिस ही जोसेफ कॉनरैड के बारे में था 1966 में, वो फिर बुक शेप में पब्लिश भी हुआ, और उसके बाद फिर उनकी दो किताबें जो आई, ओरिएंटलिज्म और कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, उन दोनों में उन्होंने एक तरह से डीकंस्ट्रक्ट किया है। ओरिएंटलिज्म में तो ख़ास तौर पे किया है कि जितने ओरिएंटलिस्ट थे, यानी ओरिएंटलिस्ट से मुराद जिसको हम मुस्तशरिकीन, ज़रा मुश्किल से नाम आ जाता है, मुस्तशरिकीन कहते हैं, यानी जो क्लेम करते हैं कि जी हम ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, तो वो एडवर्ड सईद उनको ख़ास तौर पे निशाना बनाते हैं ना, कि ये जो गोरे आ जाते हैं, गोरे गोरियाँ आ जाते हैं और आके ये हमारे माशरे को देखते हैं और फिर हमें समझाते हैं कि हमारा माशरा कैसा है, और फिर अपना एक वर्जन पेश करते हैं। तो वो उसको डीकंस्ट्रक्ट एडवर्ड सईद ने किया, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, और उन्होंने तो इवन जो चार्ल्स डिकेंस को भी नहीं बख्शा है एडवर्ड सईद ने, तो वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और उस सब पे उन्होंने तफसील से लिखा है। लेकिन एडवर्ड सईद की अप्रोच जो है वो ओवरऑल, खैर मैं खुद बात नहीं करना चाहता हूँ कि आप में से कोई इस पर बात करे, तो बनोरी साहब आप बात करना चाहेंगे इस पर? मैं इस पर थोड़ी सी बात कर जफर से। देखें, आई थिंक देयर आर 2 or 3 थिंग्स व्हिच आर वेरी क्लियर। एक तो ये है कि चूँकि कॉनरैड जो है, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट को देखता है और अपने ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को देखता है। तो जैसे लॉर्ड जिम के उन्होंने बताया कि जी उसे लॉर्ड जिम को जब वो एक्चुअली जंपिंग का सीन आता है तो ये पता नहीं चलता कि क्यों उसने जंप किया। you actually feel के did he actually want to jump or did he not want to jump, मगर ये हमें पता है कि पहले वो जहाज पे था और फिर वो किश्ती में था। तो this thing happened, and to a certain extent it is that decision which he is trying to figure out. Now you can say कि उसका जो कैनवस है वो तो उस वक्त की दुनिया है, और उस वक्त की दुनिया में colonialism एक बहुत it was the reality of the world, and और उसको कई तरीके से वो देखता है। एक तो ये भी कहता है कि देखो, your superiority is just because of the temporary weakness of somebody else, and in some sense you can say that this superiority, maybe he's talking about Western superiority. The other thing he also says is कि देखो, और ये बड़ी अजीब बात है ना कि पूरा एक दौर गुजरा जिसमें people who thought that they were the height of civilization, उन्होंने तबाही मचा दी सारी दुनिया में। They treated everybody as objects. अफ्रीका में गए, कालों को मारा, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस आप पढ़ें। इसमें अमेरिका में आए, नेटिव अमेरिकन्स के साथ जो किया, लैटिन अमेरिका के साथ जो किया, वो कौन सा है इसका, नॉस्ट्रोमो जो है जी, वो उसका, हाँ, उसमें खैर वो एक्चुअली इट्स मोर फ्रॉम देयर साइड बट इट इज स्टिल कॉलोनियल, राइट। एंड तो ये चीज़ के इसने हार्ट ऑफ डार्कनेस की तरफ वो किया। नाउ द वन थिंग विच एडवर्ड सईद
ऑब्जेक्ट्स टू, और चिनवा अचेबे ने भी बाद में किया। उसने कहा जब आप पढ़ें तो आपको ये पता है कि हुज साइड आर यू ऑन। एंड इंटरेस्टिंगली जब आप लॉर्ड जिम पढ़ते हैं, हम इस इलाके के लोग हैं, लेकिन हम लॉर्ड जिम की साइड पे, बिकॉज ही इज द वाइट मैन, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं और वो है सब कुछ, वो हम इंटरनलाइज कर लेते हैं, राइट। तो एक देयर इज अ सब टेक्स्ट ऑफ राइटिंग regardless of the extreme violence of that particular society. When you as a reader become a part of that experience, you choose a side which is not your side. मतलब है अगर आप जैसे राज क्वार्टेट पढ़ें इसका, पॉल स्कॉट का, तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि आप अंग्रेज लोगों के साथ, जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को अंग्रेज़ों के उसमें डालेंगे, ठीक है। वो है क्या नाम है, हरि कुमार, जो कि एक वो उसका है, लेकिन द रियल प्रोटैगनिस्ट आर ऑलवेज वाइट। नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ अ सब टेक्स्ट ऑफ कोलोनियलिज्म जो कि ये लिटरेचर हमें उसमें ले जाता है और हमें सिड्यूस कर लेता है। नाउ आई एक्सेप्ट दैट आर्गुमेंट, but having accepted that argument, I don't see it has anything to do with Joseph Conrad. Joseph Conrad is actually saying मैं अपनी सोसाइटी के बारे में बात करता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसका मसला क्या है, राइट। वो जो मैंने कहा कि I choose the nightmare, that I am loyal to the nightmare that I have chosen, right? उसने nightmare अपना चूज कर लिया और उसके वो साथ है। But I also accept कि these are other criticism, and you as the readers जब आप पढ़ें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये चीज़ भी है, you know, that means कि it is not as if that we should get seduced, although the power of his words does seduce us. तो मेरा ये ख्याल। और ये इस तरह की क्रिटिसिज्म का फ़ायदा यही होता है कि हम चीज़ों को फिर एक नए पर्सपेक्टिव में देखने लगते हैं ना। अब जो शेक्सपियर ने किसी जो ज़माने में चीज़ें लिखी, अब आज की नए नज़रियात की रोशनी में हम देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं उसमें कि जी उसमें भी रेसिज्म भी आपको नज़र आता है, एंटीसेमिटिज्म भी नज़र आता है, सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अभी आपने वॉगनर का हवाला दिया था थोड़ी देर पहले, उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था कि अब वॉगनर जैसा इतना बड़ा कंपोज़र और वो एंटी सेमाइट्स था, जो यहूदियों के शदीद खिलाफ था, सारा कुछ उसका था। खैर एनीवे, ये फिर दूसरी डिस्कशन चली जाएगी। अच्छा, अब हमने लॉर्ड जिम पे तो बात कर ली, एक पे मैंने बात कर ली। मैं चाह रहा हूँ कि कोई हार्ट ऑफ डार्कनेस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाले। आप डालना चाहेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस? वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस? अहमद नवाज साहब, आप शुरू करें, फिर इन तक आ जाते हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे जो इसमें अट्रैक्शन मेरे लिए रही है हमेशा से, वो वही मार्लो, द वे इट इज़ एक्सप्लेन्ड, इट इज़ फैसिनेटिंग फॉर मी। ये मैं बहुत ही ज़्यादा इससे फैसिनेट होता हूँ, इस स्टाइल से कि जिसमें समबडी इज़ नरेटिंग और उसमें फिर जब आप बात कर रहे हैं एक लिखे हुए टेक्स्ट में और एक बोली हुई बात में मेन जो डिफरेंस होता है कि बिकॉज आई एम लुकिंग एट द ऑडियंस, आई कैन शेप द वे आई वांट टू से एनीथिंग। जैसे इसके बारे में भी कहते हैं, ही टेल्स यू कि जी वो इसमें जैसे इसके बारे में कहते हैं कि ही टेल्स यू कि अभी ये कैसा फील कर रहा है, और साथ ही ये भी बता देते हैं कि 20 साल बाद मैं इस चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहा था। तो वो मतलब आगे का टाइम की कोई कैद नहीं रहती और उसमें वो बाकी चीज़ों की नहीं रहती। तो ये वाले इसके स्टाइल मुझे बड़े अच्छे लगते। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस में बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस पे पहुंचा क्यों था? ही वॉज नॉट फाइंडिंग एनी जॉब। यही इसको एक जॉब मिला स्टीमर का, क्योंकि उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द स्टीम शिप्स इनके जॉब्स कम हो गए थे कि जो पुराने सेलर्स थे। एंड ही वेंट देयर ऑन अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट और 3 महीने बाद ही वापस आ गया। वहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग अदर देन द स्टाइल वाज द वे व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द स्टीमर और साइडों पे वो देख रहा था। तो इसका जो एक्चुअल इसने खुद जो सफ़र वो किया था ऑल द वे, तो उसमें
जो क्रूएलिटी ऑफ कॉमन पर्सन, वो चीज़ जो आई है कि एक उसका मैं नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली, क्या नाम था जिसको फाइनली जाके मिला, कर्ट्स जो भी कर्ट्स, उसको जब जाके मिला ही वॉज टोटली अ चेंज पर्सन, वो बिल्कुल ही सारा कुछ उसने छोड़ दिया हुआ था। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन, और उसके जहाँ पे जिस कैंप में रह रहा था उसके बाहर स्टेक्स के ऊपर ह्यूमन हेड्स भी लगे हुए थे। तो कोई समझ नहीं आती कि इंसान की एक्चुअल असल में ठीक क्या है। वो दोनों डायरेक्शंस पे, दोनों एक्सट्रीम पे, एक ऑर्डिनरी बंदा भी चला जाता है, एक एक्सट्रीम बिल्कुल दूसरी और इस साइड के एक्सट्रीम पे भी आ जाते हैं। तो ये वाली जो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंडीशन ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन माइंड, दैट इज वेरी इंट्रिगिंग। ज़ैफ सैयद साहब, आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे? अचेबे का जो बुनियादी एतराज़ है वो मैं थोड़ा सा मतलब बयान कर दूं कि उसने 1975 में उसने एक आर्टिकल लिखा था, तो जो कि बहुत नावल जितना ही मशहूर हुआ, और उसके वो पूरे एक डिसिप्लिन जो है उसने और एडवर्ड सईद की राइटिंग की वजह से पूरा डिसिप्लिन एक वजूद में आ गया, जिसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ कहा जाता है। तो उसका बेसिक जो एतराज़ था उस आर्टिकल में वो ये था कि अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि सलीम रहमान ने जब इसका तर्जुमा किया नावल का क़ल्ब ज़ुल्मात के नाम से, तो उन्होंने अचेबे का जो मज़मून है वो भी शामिल किया है। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने, ताकि सारी वो मतकारी के सामने वो दोनों चीज़ें आ जाएं। तो उसने ये कहा कि जो अफ्रीकन्स हैं, क्योंकि ये वहाँ पे कॉन्गो गया, और ये जो मार्लो है जो नरेटर है, कहानी बयान कर रहा है, टेम्स में बैठा हुआ, एक स्टीमर में बैठा हुआ कहानी बयान कर रहा है, और वो बताता है कि कैसे अगरचे कॉनरेड ने मुल्क का नाम नहीं लिया, ना ही दरिया का नाम लिया है, कॉन्गो रिवर का, और अफ्रीका का भी लफ्ज़ उसने बहुत शायद 2-4 बार इस्तेमाल किया है। तो उसका ये कहना था कि जो अफ्रीकी लोग हैं जो पूरे नावल में मिलते हैं उसको, तो वो बिल्कुल एक मतलब सैवेजेस के रूप में उसने पेश किया है। वो एक इंसान से कमतर मखलूक के तौर पे दिखाए हैं, और उनका कोई नाम नहीं है, उनको कोई डायलॉग्स नहीं दिए गए, वो खामोश रहते हैं, और कई जगह पे वो साए, जैसे वो कहता है कि शेडोज़ कमिंग फ्रॉम द जंगल, और एक जगह पे लिम्स, सिर्फ लिम्स है कि लिम्स नज़र आ रहे हैं, कि वो सिर्फ आज़ा का मजमुआ है, वो कोई फ़र्द या शख्सियत उनकी बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को उसने बड़ा एतराज़ किया, और बिल्कुल जायज़ उसका एतराज़ है। लेकिन एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात आती है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के बिल्कुल शुरू में मार्लो जब अपनी कहानी बयान करता है, और वो इंग्लैंड के बारे में बात करता है, और वो ये कहता है कि आज से 2000 साल पहले जब रोमन्स आए थे इंग्लैंड में, तो उस वक्त जो इंग्लैंड के ओरिजिनल बासी थे, तो वो रोमन, चूँकि सिविलाइज्ड रोमन एम्पायर थी, वो एक बड़ी एक उसकी सिविलाइजेशन थी, और उस मुकाबले में जो बरतानिया के ओरिजिनल बाशिंदे 2000 साल पहले जो होंगे, तो वो ज़ाहिर है कि बहुत ही बैकवर्ड रहे होंगे। तो वो उसको कंपेयर करता है कि अफ्रीका के जो लोग हैं, जब यूरोपियंस 19वीं सदी के आखिर में वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको ऐसे ही लगा होगा जैसे रोमन्स ने इंग्लैंड के ओरिजिनल बाशिंदों को देखा होगा, और जैसे सेवेजेस इनको वो नजर आए तो रोमन्स को वो लगे होंगे। तो वो, लेकिन वो फिर अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं मतलब रोमन से ज़्यादा बेहतर हूँ। तो जैसे मार्लो अपने आप को डिस्टेंस करता है 2000 साल के फासले के बाद, तो इसी तरह से हमारा भी 1 सदी का फासला आ गया है कॉनरेड से। तो अब हम वो उस पोजीशन में हैं कि हम कॉनरेड को उसी तरह से सिचुएट कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, जैसे कि जोसेफ कॉनरेड मार्लो की ज़बानी हमें कहलवा रहा है कि जैसे रोमन्स जो थे और वो कैसे देखते थे और कैसे ट्रीट करते थे। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को भी जहन में रखना चाहिए। अच्छा, इसी नावल के बारे में बराक ओबामा ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। वो कहीं पे नावल पढ़ रहा था, हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो किसी ने पूछा कि भाई ये तो बड़ा मतलब रेसिस्ट नावल है और ये ब्लैक्स के ख़िलाफ़ है और तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो बराक ओबामा ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट अफ्रीका, इट्स अबाउट अ यूरोपियन राइटिंग अबाउट अफ्रीका। तो वो एक यूरोपियन उस ज़माने का, जो 1899 में लिखा गया है ये नावल, तो एक यूरोपियन शहरी जो है वो इंग्लैंड में बैठ के लिख रहा है, तो वो कैसे उस दुनिया को देख रहा है, अफ्रीका को किन मतलब नज़रों से देख रहा है, तो ये उसकी तर्जुमानी है।
तो हमें उस दौर को और उस पीरियड को भी जहन में रखना चाहिए। अच्छा, इसी नावल के फिर दो पहलू हैं। एक तरफ तो रेसिज्म है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि वो वाकई उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जो अचेबे के एतराज़ात हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उसी कॉलोनियलिज्म के या इम्पीरियलिज्म के हॉरर भी तो दिखा रहा है। वो हमें दिखा रहा है कि कितनी तबाही हुई है, कितनी लूट मार हुई है। अच्छा, एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात आती है कि 1884 में, यानी ये तो ख़ुद कॉनरेड गया था वहाँ पे कांगो में 1889 में, तो उससे सिर्फ 5 साल पहले बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी। और बर्लिन कॉन्फ्रेंस में जिसको स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका कहते हैं, उसमें 7 यूरोपीय मुल्कों ने अफ्रीका को 90% अफ्रीका उसको तकसीम कर लिया था कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो 7 मुल्कों ने। और सिर्फ मेरे ख्याल से एक इथियोपिया बच गया था किसी वजह से, और एक आध कोई मुल्क बच गया था, उसको उन्होंने नहीं, शायद लीबिया, और बाकी तमाम का तमाम अफ्रीका उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया था। तो वो एक सिविलाइजिंग मिशन पर भी थे। जैसे बेल्जियम के हिस्से में ये आया था, कांगो आया था, तो बेल्जियम का जो बादशाह था लियोपोल्ड दोम शायद, तो उसने कहा था कि हाँ, हमारा मिशन एक्चुअली हम तो सिविलाइज करने, जैसे ये नॉवलिस्ट, इंग्लिश नॉवलिस्ट किम का जो ऑथर है, क्या, हाँ, जो उसने कहा था ना कि बर्डन ऑफ द वाइट मैन, तो वो बर्डन ये था कि हमने सिविलाइज करना है। तो वो उस वक्त ये एक तासुर था कि हम तो इन लोगों को सिविलाइजेशन दे रहे हैं, इनको हम एक नई तहजीब सिखा रहे हैं, इनको हम टेक्नोलॉजीज़ दे रहे हैं। तो वो चीज़ उस वक्त ये तासुर यूरोपियंस के अंदर एक बंदा जो बैठा हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस लिहाज से काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव लगता है कि वो हॉरर भी तो दिखा रहा है, वो अपनी इनहेरेंट रेसिज्म के बावजूद हमें वो साथ में वो चीज़ भी दिखा रहा है। और अच्छा, इसके बारे में एक किताब अभी हाल ही में लिखी गई है, एक ऑथर है माया जेसनोफ, तो उसकी किताब है डॉन वॉच। तो उसमें ख़ुद उसने सफ़र किया, वो ख़ुद कांगो रिवर में वो उसी तरह के स्टीमर में बैठ के वो आई। तो वो ये कहती है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका लोकल्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, उसको आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऊपर जाने में 4 हफ्ते लगते हैं, वापस आने में 2 हफ्ते लगते हैं। और वो स्टीमर जो कॉनरेड का था वो फायरवुड स्टीमर था, तो उसके लिए रोज़ाना लकड़ी चाहिए होती, तो लकड़ियाँ मकामी लोग ही लेके आते थे, फिर उनको खाने पीने की चीज़ें वो मकामी लोग ही फराहम करते थे, बाकी सारी चीज़ें वो उधर से आती थी। तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आपका रहता है, लेकिन आपको कॉनरेड कोई उस तरह का इंटरेक्शन नहीं दिखाता। वो तो या तो जंगल में से एक सनसनाता हुआ तीर आता है, या कोई साए से वो आपको चलते फिरते नज़र आते हैं, या कोई लाशें फिर आपको नज़र आती हैं। तो ये तो एक चीज़ उसके अंदर है, लेकिन हमें उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। वो 1899 के हालात में उसने लिखा, तो हमें वहाँ पे जाके तो उस बारे में गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। और अगेन एज एन असाइड मैं रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली इस पर जो फिल्म बनी है एपोक्लिप्स नाउ, वो फिल्म उन्होंने ये फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला की फिल्म है और मार्वेलस डायरेक्शन है, और मार्लन ब्रांडो जो है वो उसमें वो कुट्स का उन्होंने, हालांकि उनका किरदार छोटा है, लेकिन कहा जाता है कि उस ज़माने में उन्होंने जितने पैसे लिए, वो 1979 की फिल्म है, मार्लन ब्रांडो ने जितने चार्ज किए वो पूरी चंद मिनट टोटल पूरी फिल्म में देख लें तो उनका जो किरदार है ज़्यादा नहीं है। मार्टिन शीन जो है वो ज़्यादा मेन उनका किरदार है उसमें, लेकिन वो जिस तरह से उसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है कांगो से वियतनाम में, और वियतनाम में जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी वो उस फिल्म में दिखाई गई हैं। तो जिन लोगों को फिल्मों का शौक है वो एपोक्लिप्स नाउ ज़रूर देखें, तो आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस का बहुत सही अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि इसको, हाँ, फिर हम आपके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर के लिए फ्लोर ओपन कर देंगे। जी आप बताइए। 2-3 चीज़ें मैं ज़रा इसमें, एक तो ये है कि टू पैराफ्रेज बाराक ओबामा, मेरा व्यू इसके बारे में यह है कि ही इज़ ए यूरोपियन राइटिंग अबाउट यूरोपियंस। He is not writing about Africans. He is not writing about Asians. He is writing about Europeans. And that is the way I interpret him. And that's why, I mean, Chinua Achebe ठीक कहता है कि भाई अगर हमारे कॉन्टेंट लिखो तो हमारी कुछ बात करो, लेकिन यार वो तुम्हारे बारे में नहीं लिख रहा। Right? And the second thing is कि वो ये भी कहता है कि यार अब देखें ना, I mean, colonialists ज़रा सोचें इस बात पे कि for centuries we justified कि इस ज़मीन में कोई लोग नहीं है,
जाके कब्जा कर लो और उनको मैसेकर कर दो, और सब ठीक है। वो क्रिश्चियन थियोलॉजी के बेसिस पे जस्टिफाई कर रहे थे। अब इजराइल ने कब्जा किया हुआ है इसराइल पे कि यहाँ पे लोग लैंड फॉर पीपल, फॉर क्या पीपल विदाउट लैंड फॉर अ लैंड विदाउट पीपल। देखे ना फ़लस्तीन में जब इजराइल बना तो यही था ना कि लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट लैंड। यार इट वाजंट विदाउट पीपल। अमेरिका wasn't without people, South America wasn't without people, Africa wasn't without people. लेकिन क्या justification थी? तो अब you know when I look at people like Conrad, they are not saying कि यार मैंने तुम्हें ह्यूमनाइज करना। उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं मैं आपको अपना चेहरा दिखाना चाहता हूँ। एंड ही शोज हिज फेस, दिस फेस in a manner which is magical, right? And this is really what I appreciate about him. तो ये एक बुनियादी चीज़ है। बाकी तो ये सब जो हैं, ये सब जो characters हैं, they don't exist because he's not writing about their struggles of the human heart in conflict with itself. He's writing about my struggle of the human heart in conflict with myself. That is what he is writing about. ठीक। और इसमें और ये जो है कि कॉलोनियलिज्म का उसने जो एम्पायर का जो हेडक्वार्टर्स है वो चूज कर दिया। देखें इसका नाम जो था, इसका नाम था जोसेफ थियोडोर कॉनराड कोर्सनियोव्स्की, राइट? जोसेफ वाज हिज ग्रैंडफादर्स नेम, उसके ऊपर दिया गया। थियोडोर वाज हिज मैटरनल ग्रैंडफादर्स नेम, वो दिया गया। कॉनराड वाज अ लिटरेरी कैरेक्टर who was a champion of Polish independence, right? Of Polish independence, ठीक है ना? वो पोलैंड के मेरे ख्याल में बेहतरीन शायर जो है मिकेलियोव्स्की, कुछ ऐसा नाम है उसका, उसकी जियादी एक नज्म है, और एक कॉनराड वालेंड समथिंग, राइट? इट्स ऑल। तो वो ही इज अ चैंपियन ऑफ पोलिश इंडिपेंडेंस, और इसने अपना नाम चूज किया। जोसेफ वाज हिज फर्स्ट नेम और फिर कॉनराड, क्योंकि कोर्सनियोव्स्की उसने कहा उनसे बोला ही नहीं जाएगा, राइट? तो वो कॉनराड जो कि वो पोलिश वो था। तो आप ये देखें कि वही शख्स जो अपने नाम को चूज कर रहा है एज द चैंपियन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल रूल, अगेंस्ट सम फॉर्म ऑफ colonialism, is actually now speaking in the heart of the empire. And he's not talking about you, he's talking about himself. And that is, I think, how it should be interpreted. Sorry. बिल्कुल अच्छी आपने बात की। अच्छा, अब नाउ लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो कोई सवालात किसी के जहन में हो या कोई कमेंट करना चाहे तो यू आर वेलकम। हमारे पास 10 मिनट है, 8 बजे हम इसको ख़त्म करते हैं। अभी 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट में मेरे ख्याल है 2-3 सवाल तो आराम से लिए जा सकते हैं। प्लीज़। जी अता, नहीं अब तो लोगों को सोचने का तो मौका दें। इतनी जल्दी सवाल नहीं नाजिल होते। नाम तो बहुत सुना था, आज तारुफ हो गया और पता चल गया इन फिक्शन राइटर का। मैं बड़ा भागी हूँ कि अभी तक नहीं पढ़ सके इन्हें, तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्तों में इन्हें पढ़ेंगे। मेरा था, एक तो आपने बताया कि जो यूरोपियन राइटर्स थे उन पे तो इनकी दे आर क्वाइट इंस्पायर्ड और उसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। तो आया कोई हमारे यहाँ जनूबी एशिया में भी ऐसे राइटर नज़र आते हैं कि जिनमें ये रिफ्लेक्शन इनके आती हो, जोसेफ कॉनराड? ये आई डोंट नो कि कॉन्शियसली है, लेकिन यू नो व्हेन आई रीड लिटरेचर व्हिच इज रियली अबाउट फीलिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस, तो फिर मुझे लगता है कि अनकॉन्शियसली तो इनके ऊपर असर ज़रूर हुआ है। अब यू नो आई एम वेरी ऑल्सो, जैसे आपने माजरत की, मैं भी माजरत कर रहा हूँ कि मैंने ज़फ़र साहब के नावल नहीं पढ़े, बट आई विल रीड देम एंड मे बी यू नो ही इज़ समथिंग हु हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय दिस, राइट? तो ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये ज़फ़र साहब आपसे जो आपने बहुत अच्छी बात की कि यार देखो अलिफ लैला में भी जब आप पढ़ते हैं ना, तो बीच में कोई आ जाता है, पहले रोता है, फिर हंसता है, फिर वो अपनी कहानी सुनाता है, उसकी कहानी के दौरान फिर एक और कहानी निकलती। लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है अभी भी। ये अगर आप ओरहन पामुक की किताब पढ़ें, माय नेम इज़ रेड, तो आपको उसमें माय नेम इज़ रेड में वो आर्ट के ऊपर देखता है और वो ये कहता है कि इस्लामिक आर्ट
कि जब ये इनकाउंटर वेस्टर्न आर्ट से होता है और वो सुल्तान मुराद सेकंड, मुराद थर्ड जो लेके आता है, तो कहता है फंडामेंटल डिफरेंस ये था कि इस्लामिक आर्ट में आपको सिखाया जाता था कि यू लुक एट इट फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, तो आपने आर्किटाइपल फिगर्स बनाने, घोड़े भी आर्किटाइपल बनाने। वेयर एज जब वो यूरोपियन आर्ट को देखते हैं कहते हैं यार ये तो इंसान है, ये तो हम जैसे लोग हैं। इन सम सेंस दे आर एक्चुअली गिविंग यू अ डिफरेंट आई। नाउ ये इम्प्रेशनिज्म ने भी कहा कि भाई देखो, इट इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड इज जो मैं पेंट कर रहा हूँ, इट इज़ हाउ द आई, हाउ द हार्ट सीज इट। और इम्प्रेशनिज्म में ये चीज़ आई। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं अलिफ लैला भी पढ़ता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स दे रहे हैं हमें। मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स बिकॉज इट्स द गॉड्स आई विच इज लुकिंग एट देम रादर देन टू से कि यार फैक्ट्स तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ, राइट। ये जब 19th सेंचुरी के एंड में ये नया एक वो आता है कि व्हेन यू नो कि रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द स्पेक्टेटर, it is the spectator that determines the reality. I think this is a fundamental break, and this is where I feel कि Conrad को हम जो है हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। थैंक यू। आपके सवाल पे थोड़ा सा कमेंट मैं करूँगा, ये सवाल अच्छा है। देखिए जो इम्प्रेशनिज्म की इन्होंने बात की, लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म में, जिसमें हालात व वाक़यात से ज़्यादा जो किरदार है, किरदार के जज्बात को बयान किया जाता है, तो इमीडिएट जो लिया असर तो वो तो वर्जीनिया वुल्फ का नाम है। हालांकि वर्जीनिया वुल्फ को ज़्यादा समझा जाता है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से ज़्यादा जानी जाती हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप उनका मिसेस डैलोवे देखें, वो भी नॉवेला है, पूरा बड़ा नहीं है, तो वो उसमें भी हालात व वाक़यात से ज़्यादा वो जो मेन कैरेक्टर है उसकी, मेरा ख्याल है क्लैरिसा नाम है जो खातून नरेट कर रही हैं अपना, वो पूरा इम्प्रेशंस हैं लोगों के। तो वो एक बड़ी आइडियल एग्जाम्पल है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने साउथ एशिया के राइटर्स की बात की, जो क्लोजेस्ट आई कैन थिंक ऑफ, आपने जब ये कहा ना, क्योंकि ज़ाहिर नाम तो आपके जहन में आते हैं ना कि कौन कौन लिखा है, सलमान रुश्दी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इम्प्रेशनिस्ट उनको नहीं कहा जा सकता, वो दूसरी तरफ निकल गए, मिडनाइट चिल्ड्रन वगैरह उनका जो है, या क्लोजेस्ट मेरे मुझे जो नाम आता है वो रोहिंटन मिस्री का। रोहिंटन मिस्री जो है वो बड़े, मेरा ख्याल है थोड़े से हमारे यहाँ अंडररेटेड हैं, उनको इतना डिस्कस नहीं किया जाता। ख़ास तौर पर मैं उनका जो फाइन बैलेंस, उनका एक नॉवेल है, वो अगर आप देखें तो उसमें जो ये इम्प्रेशनिस्ट किस्म की राइटिंग है ना, जो उसमें जो किरदार हैं, अब मैं उसकी तफसील कहानी और वो किरदार में नहीं जाना चाहता। तो रोहिंटन मिस्री का नॉवेल फाइन बैलेंस पढ़ें, आप देखें, वो मेरा ख्याल है क्लोजेस्ट है इम्प्रेशनिस्ट राइटिंग में, मेरा ये ख्याल है। अच्छा जी, और कोई सवाल? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है कि जी क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए, क्या सही तरीका है और क्या सिंपैथेटिक व्यू है, उसकी वजह से असलियत को बाज़ दफ़ा हम छुपा देते हैं और वो फिर उस असलियत पे बात ही नहीं होती। तो क्या यही जोसेफ कॉनराड की जो क्रिटिसिज्म है, ये पॉलिटिकल करेक्टनेस किस्म की चीज़ लगती है? और क्या अब इस पॉइंट पे क्या हम उससे आगे चले गए हैं या अभी भी वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में फंसे हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं एग्जैक्टली इसी तरह से ही अप्रोच करता हूँ क्रिटिसिज्म को। मेरे ख्याल में इतना 100 साल प्लस उसको 110-15 साल, ये कब उससे 95 के बाद ही लिखना शुरू किया था, 1895 वगैरह। तो उस ज़माने के पर्सपेक्टिव से अगर हम चीज़ें देखें तो मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं आती। जैसे अभी कोई अगर ये कहे कि उसने औरतों का बड़ा कम लिखा, एक्चुअली नोस्ट्रोमो में थोड़ा सा है, बाकी कहीं पे भी कोई ख़ास नहीं है। आप लॉर्ड जिम के बिल्कुल आखिरी मेरे ख्याल में 20 सफ़े रह जाते हैं, जब वहाँ पे थोड़ा सा रोल आता है, ज्वेल उसका नाम है मेरे ख्याल में। तो उसके अलावा औरतों का भी कहीं जिक्र नहीं है। अब कोई कह दे कि औरतों के बारे में नहीं है, अब बट वी आर टॉकिंग ऑफ 1895। और जहाँ तक ये कॉलोनियल वो वाला सारा है, ये उसी तरह की बात लगती है जैसे आपने सुना होगा ज़रूर कि शिकार की कहानियाँ होती हैं, वो हमेशा शिकारी लिखता है
और बहादुर कौन होता है? शिकारी। जिस दिन शेर ने लिखना शुरू किया फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी बात। तो उस ज़माने में तो कोई शेर लिखता नहीं था, शिकारी ही लिखता था। और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज इन लिटरेचर, ये जोसेफ कॉनराड का, इन बातों के ऊपर फोकस करना। वेल यू कैन ऑलवेज, लेकिन आप देखें कि कितना सेंसिटिव वो इंसान था। यू हैव टू रीड नोस्ट्रोमो. Nostromo, it's a difficult read, but nonetheless you live with it for a few months and you will read it finally. अब देखिए कितना गया था उधर वो उस डायरेक्शन में towards Central America. People are not even sure कि वो वहाँ तक उससे लैंड भी किया था या नहीं किया था. He was so imaginative and he knew the political things. वहाँ पे क्या है, एक जनरल है जो डेमोक्रेट बनना चाहता है, डेमोक्रेसी लाता है, फिर वो एक गोल्ड सिल्वर माइन है. सो वो सारी इम्पीरियल वो वाली सारी पॉलिटिक्स है आज तक चल रही है उस इलाके में, आज तक चल रही जी. और उसका अपने उसने इतना अच्छा ग्रेस्प किया है उस सारे को. और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जब जाते हैं इंडोनेशिया वगैरह, ये क्या सरावाक. सो ही वॉज अ सेंसिटिव पर्सन हु रोट अबाउट द थिंग्स विच ही सॉ. और वो वाली इतना डीपली फील करना और उसको लिखना, उसमें वी कैन ऑलवेज हैव द क्रिटिसिज्म ऑन फ्यू थिंग्स व्हिच ही परहैप्स मिस्ड आउट आजकल के ज़माने के लिहाज से, ठीक, उस ज़माने के लिहाज से नहीं. चले, थैंक यू वेरी मच. मेरा ख्याल है 8 बज गए, क्लोज करना. एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं. Thank you for a very brilliant discussion. We got to know some really interesting points जो आपने बात भी की कि internal struggle और दूसरों के बारे में नहीं लिख रहा था, अपने बारे में लिख रहा था. I've only read one of his books, Heart of Darkness, और just had 2 short questions कि internal struggle जो है वो औरों ने भी इसके बारे में लिखा, जिस क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोयेव्स्की का है या और भी है. तो आप किस तरह जो है वो कंपेयर करेंगे और ऑथर्स के साथ अबाउट दिस टॉपिक इन पर्टिकुलर, इंटरनल स्ट्रगल की बात. और कुछ लोग जो है जोसेफ कॉनराड को इम्प्रेशनिस्ट के अलावा जो मॉडर्निस्टिक भी कहते हैं, ही वाज अ मॉडर्निस्ट राइटर. तो वो किस तरह, लाइक व्हाट वर द एस्पेक्ट्स दैट मेड हिम like you know modernist. तो उस पे अगर कुछ प्लीज इन्फॉर्म करें. ज़ैफ सैयद, आप कहना चाहेंगे? मॉडर्निज्म की तो उसकी बात हो गई कि उससे पहले 19th सेंचुरी के अगर आप नावल देखें इंग्लिश में या मतलब रशियन में या दूसरी ज़बानों में, तो वो उसमें सीधे सीधा एक तरह का नैरेटिव था. तो इसने एक तो टेक्निक की सतह पे उसने चेंज किया. उसने नैरेटिव जो हैं वो अब जैसे लॉर्ड जिम है, लॉर्ड जिम में आप देखें तो उसमें मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, वो ऑर्डर टूट जाता है, कभी चीज़ें आगे चली जाती हैं कभी पीछे, और फिर वो मुख्तलिफ उसके नैरेटर्स हैं वो बयान कर रहे हैं. तो वो जो उसकी मतलब टेक्निक है वो मॉडर्निस्ट मतलब टेक्निक है, और जो फिर बाद में 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई. फिर जैसे इन्होंने भी बात की कि जो हीरो का तस्वर था उससे पहले, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें एक बड़ा एक मतलब वलवला अंगेज़ हीरो का तस्वर नावलों में भी और बाकी चीज़ों में मिलता था. तो उसने उसको भी तोड़ दिया, वो एंटी हीरो लेके आया. और ऐसे लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मसाइल से दो चार हैं, जिनको पछतावा है सारी ज़िंदगी, वो उसके साथ एक तरह की जंग जारी है. तो अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात ये कि कॉनराड के बारे में अभी जो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक वो पूरी ज़िंदगी वो क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार थे. वो ख़ुद भी लड़ते रहे, यानी उनके अपने भी एक डार्कनेस उनके अंदर मौजूद थी, वो उसका मुकाबला करते रहे. और उन्होंने ख़ुदकुशी की भी कोशिश की और अपने सीने में पिस्तौल रख के उन्होंने चलाया. लेकिन खुशकिस्मती से वो ऑर्गन्स बच गए. वो कुछ इस अंदाज से गोली गई कि वो किसी मेजर ऑर्गन को नहीं. तो वो खुद भी स्ट्रगल करते रहे ज़िंदगी भर, और उनके किरदार भी ऐसे दिखाएं कि वो भी मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं. वैसे ये लोग जो खुदकुशी करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग थे. मुझे ये रिमाइंड्स मी ऑफ वैन गॉफ. उन्होंने भी खुदकुशी की कान काट के,
पहले कान काट लिया उन्होंने, क्योंकि उनके कान में आवाज़ें आती थी, और फिर जब गोली भी मारी तो पेट में मारी, और वो फिर कई दिन तक बेचारे वो लगते रहे मरने से पहले। एनीवे, ये तो मेरा ख्याल है यहाँ पर गुफ्तगू। हाँ, एक मैं और आखिरी में कहना चाहूँगा, वो बीच में मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि चिनुआ अचेबे की का जो नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, अगर कॉनरैड को समझना है तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि एडवर्ड सईद और चिनुआ अचेबे को पढ़ना ज़रूरी है। तो उनका जो नॉवेल है वो एक तरह से कहा जाता है कि चिनुआ अचेबे ने थिंग्स फॉल अपार्ट जो लिखा वो जोसेफ कॉनरैड के जवाब में लिखा, क्योंकि उन्होंने अफ्रीकन वर्जन दिया है उस कहानी का। अच्छा, और मज़ीद ये बता दूं आपको कि उस नॉवेल का तर्जुमा उर्दू में, थिंग्स फॉल अपार्ट का उर्दू तर्जुमा बिखरती दुनिया के नाम से किया गया है, जो मशल फाउंडेशन ने छापा है और जो गालिबन यहाँ बाहर मौजूद होगा। तो अगर किसी को चाहिए तो वो उर्दू तर्जुमा लेके पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, मज़ा आया। आप हजरात का भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि 8 बजे तक बैठे रहे और हमारी गुफ्तगू सुनी आपने। थैंक यू वेरी मच।